Good afternoon. It's our honor and pleasure to be talking to all of you and recording a small talk as an introduction to the idea of gender in the present context. I'm extremely grateful to the members of the Gender Sensitization Committee of the University of Lucknow, especially the team leader, Professor Roli, who has distinguished herself as a person who's deeply committed to the question of gender justice, as a feminist scholar, as a person in economics who has regularly been publishing and also doing a large number of activities on the campus to promote the idea of gender equality and gender justice. The Vice Chancellor of Lucknow University, Professor Alok Kumar Rai, is known for his extreme commitment to the idea of gender justice and women empowerment. We have constantly seen that he has instituted many formal as well as informal practices which encourage young women students and senior women scholars to feel safe and in positions of leadership. Today, as we talk about gender sensitization in context of the present policy of education, higher education, the national education policy, we also talk about the new age of the country and the youth of the country and the changing scenario of gender in the new world. I personally feel very happy that I have had the opportunity of working on the questions of gender justice and women empowerment, both at the level of policy, at the level of training, at the level of writing in academia, and contributing richly also to the ground with a large number of people in India and in Nepal. I've had the opportunity to work with a large number of democratic institutions and agencies which have been working on women, especially the UNDP report on women, the national report, Milestones and Challenges, Women Empowerment in India for DFID, the UNDP report for the state of Uttar Pradesh, a large number of exercises that we did with teachers and students all over the country have enriched my understanding of gender and women empowerment. Today, let us talk for everybody's benefit on 4 or 5 major things. 1, about the question of understanding gender. 2, the questions of empowerment, especially women empowerment. 3, discrimination and institutions of discrimination. 4, areas of discrimination. And 5, something briefly about the question of feminism or feminisms, especially as they relate to India. As the Gender Sensitization Cell of Lucknow University must be congratulated again and again. In the past term, they have had a huge amount of personal interaction with students through many programs like Guftagu, Rubaru, band created only by women, and also many plays, street plays done by students' organizations, including Adamya. I take this opportunity to congratulate all these young people, and I feel and to express my deep sense of happiness that on the campus we find right now, under the able leadership of our Vice Chancellor and all the young faculty, a great deal of gender equity, greater participation of women, greater freer participation of girls and boys together on questions about gender, equality, freedom, and many other things as they concern the young people. But let me take this opportunity, as I said, to do some simple clarifications on some simple things which you already know. First and foremost, let's talk about gender. We talk about 3 related concepts: gender, sex, and sexuality. I was also asked to talk about same-sex marriage, its legitimacy, its validity, and the questions as they touch upon us as young teachers would look at it and young students would look at it. Now, first and foremost, let us look at the idea of discrimination. In English language, the word discrimination seems to have a double edge. Sometimes we say that a person is very discriminating
is a good person, he is able to distinguish the good from the bad, the wheat from the chaff. The Hindi translation for this idea of discrimination would be perhaps नीर क्षीर विवेक, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है. But there is also another sense in which we talk about discrimination, and that is the sense in which we talk about discrimination which in ordinary Hindi would be called bhed bhav, where we say that a particular individual or a particular group is given more importance than another individual or a group based upon factors which are not relevant. तो जब किसी अनावश्यक या निष्प्रयोजन या बिना साक्ष्य के दिए गए तर्क के आधार पर जब हम किसी एक व्यक्ति या एक व्यक्ति समूह को दूसरे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के स्थान पर अधिक वरीयता देते हैं, तो हमें ये कहा जाता है कि that you are discriminating. And I keep on saying that everywhere, every time, even when we are talking about gender, is the question that हमारा समाज अनेक प्रकार के भेदभाव से भरा हुआ है. We make distinctions based upon the rich and the poor. We make, और आप सभी को पता है कि हम सब ये समझते हैं कि अमीर लोग अमीर कैसे बने हैं. तो सभी लोग ये नहीं मानते कि सभी अमीर लोग अपनी मेहनत से बने हैं. हम ये भी मानते हैं कि एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि अधिकांश लोगों का पैसा और ताकत दूसरे लोगों की शोषण के द्वारा बनी गई है. सो दे हैव टेकन मनी, दे हैव टेकन ग्रेटर प्रॉफिट्स, नॉट distributed them properly, and therefore in the classical framework it is the labor surplus which actually has created greater wealth on one side. ये बात भी आप सबको पता ही है कि अमीर और गरीब का फ़र्क किस आधार पर होता है. तो कई लोग कहते हैं कि वो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा सेविंग के आधार पर होता है, पर ये सबको पता है कि वी मेक ए डिस्टिंक्शन बिटवीन इनकम पावर्टी एंड चॉइस पावर्टी. तो गरीब वो है जिसके पास कम चॉइसेस हैं. आपको ये अंदाज़ी है कोविड के टाइम पे यू सॉ दैट पीपल हैड मनी बट डिड नॉट हैव opportunities to buy the services that they were required to. So poverty is one major human right violation, and we find that that's a major area of discrimination where the rich subjugate, oppress and humiliate the poor. The other question is about race. वो रेस का मतलब आमतौर पर हम लोग ये मानते हैं, जो कई बार रंग से भी जुड़ जाता है, रंग भेद की नीति, that a very small section of the white people were ruling over a large number of black people even in Pretoria regime. और हिंदुस्तान में भी आप सभी लोग जानते हैं, जितने बच्चे यहाँ बैठे हैं, अभी जब आप लोग लड़की देखने जा रहे होंगे तब आप क्या कहेंगे कि वो लड़की का रंग कैसा होना चाहिए. मैट्रिमोनियल कॉलम्स में क्या लिखा रहता है, wanted a gory, homely, educated bride. So there's a huge amount of discrimination based upon the color of the skin, and which is terrible. Then there are discrimination based upon language. कौन अंग्रेजी बोलता है, कौन हिंदी बोलता है, कौन हिंदी बोलता है, कौन भोजपुरी बोलता है. There are layers and layers of discrimination based upon language. लखनऊ शहर के लोगों को अपने अदब, अपनी तहजीब, अपनी भाषा का बहुत गुमान होता है, और लोग ये मानते हैं कि भाई हमारी जैसी उर्दू, हमारी जैसी ज़बान किसी की नहीं है. और मैं ये अक्सर लोगों को ये सुनाता हूँ कि जब हम लोग पढ़ते थे तो लखनऊ के लोगों का ये तहजीब याफ्ता तरीक़ा इस रूप से सामने आता था कि अगर कोई बहुत ही बदतमीज़ी से बोल रहा होता था तो कहते थे आप लखनऊ से नहीं है ना, विच meant कि सिर्फ लखनऊ के लोगों में ही ज़बान की तहजीब होगी, which is again problematic, which is true for all parts of the world where they have a certain kind of a standard English which is superior to the rest of the English, so that's supposed to be Cockney and so on and so forth. एक और भेदभाव है जो हम क्षेत्रीयता के आधार पर करते हैं कि कौन किस क्षेत्र से आया है. आप शहरों में भी ये होता है कि आप साउथ दिल्ली में रहने वाले हैं, कि आप साउथ बॉम्बे में रहते हैं, कि आप लखनऊ में कहाँ पे रहते हैं, मॉल एवेन्यू में रहते हैं, कि आप कहीं छोटी सी और ऐसी जगह पर. सो प्लेसेस ऑफ प्रिविलेज एंड पावर. एक और भेदभाव जो हमारी होता है वो एबिलिटी एंड डिसेबिलिटी. कौन जना आँखें किसकी दोनों सलामत हैं, हाथ दोनों सलामत हैं, ज़बान साफ़ है या नहीं. और डिसेबिलिटी के आधार पर भी हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तमाम दुनिया में. एक और भेदभाव जो और भी हम देखते हैं, वो भेदभाव जो हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा प्रेवलेंट है, वो है कास्ट के आधार पर.
So we make a distinction sometimes between the Brahman, Kshatriya, Shudra, Vaishya, but that's an oversimplification. If you look at the People of India report, there sometimes they say that there are 4,600 or 4,965 kinds of people. कौन जना ब्राह्मण है तो वो नदी के इस तरफ का है कि उस तरफ का है, वो आदि कन्नडिगा है कि वो कैसा है, वो ऐसे त्रिपुंड लगाता है कि ऐसे त्रिपुंड लगाता है, क्षत्रिय है तो कौन सा क्षत्रिय है. Some people have a confusion that in Islam there is no caste, but in Islam or Christianity also there is a huge amount of caste system. There is no untouchability. पर अगर आप बुद्धिज़्म में इंडिया में देखें, क्रिश्चियनिटी भी देखें, तो जो जना दलित से क्रिश्चियन बना है, जो जना ब्राह्मण नंबूद्रीपाद से बना है, they have different symmetries, they have different places of sitting. So there is a huge amount of discrimination based upon caste. And then of all the differences, there are many other differences, but there is one important difference that we talk about in terms of sexuality, कि वो homosexual है, कि वो heterosexual है, कि वो bisexual है. और एक difference ये जिसको हम आज चर्चा का विषय बना रहे हैं about gender. So लड़का होना क्या है, लड़की होना क्या है, इसके आधार पर जो हम भेदभाव करते हैं, that is one discrimination based upon gender. So that's one very interesting kind of distinction and discrimination on the basis of which not only we distinguish between boys and girls, but we say कि लड़का होना लड़की होने से superior है. और लड़की की भी अगर तारीफ की जाए तो ये कहा जाएगा कि भाई खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रहा. So the question of discriminations are aplenty. Why I was talking about all these discriminations, because what I was trying to say was that gender is not the only discrimination. It's a very important discrimination, but not the only discrimination. और एक बात जो आज अभी प्रोफेसर ओली ने कही थी about intersectionality, कि एक डिस्क्रिमिनेशन जब दूसरे डिस्क्रिमिनेशन के साथ इंटरसेक्ट करता है तो क्या मुश्किल हो जाती है. तो अगर आप लड़की हैं, अगर आप लेस्बियन हैं, अगर आप अश्वेत हैं, अगर आप दलित हैं, अगर आप मुसलमान हैं, अगर आप किसी असेवित क्षेत्र से आते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम्स और भी कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कंपाउंड हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं. जैसे जातीय स्तर पर के अंतर्गत लड़कियाँ, ठाकुर जात की लड़की क्या दलित जात की लड़की से अधिक परेशान है या कम परेशान है, ऐसा नहीं कहा जा सकता. ब्राह्मण स्त्रियों को ऊपर ये भी वज़न है कि वो परिवार का ऑनर भी अपने आप बचाए रखें. कई बार हम लोगों ने जब दलित कम्युनिटीज़ में करा तो कई बार अपमानित होने के बावजूद दलित स्त्री बाहर भी निकल आती है, उसका पुनर्विवाह भी हो जाता है. और कई बार जो ठाकुर या ब्राह्मण स्त्री का दक्षिण में ज़्यादा कठिन है, नॉर्थ में ज़्यादा आसान है, so on and so forth. So it becomes more compounded. The intersectionality talks about the question that how one kind of discrimination and other kinds of discrimination, when they intersect with each other, what happens. So that's one very important area that we talk about. Now let's go back to the idea that we have these discriminations, and in these discriminations we are also talking about today primarily about gender discrimination. In terms of gender, one very important thing which people are now talking about, and our university is also talking about, and wherein I want to again complicate these things. As we said, sex का मतलब क्या है? Natural distinctions between a male and a female, and they are based upon primarily three things. One, the chromosomal structure of the boys and the girls is not the same. The second, the secondary and the tertiary parts of the boys and girls are different. ऐसा नहीं है कि लड़कियों के हार्ट में 4 की जगह 3 चैम्बर होते हैं, या लड़कों के किडनीज नहीं होती, या लड़कियों के लंग्स किसी और तरह के होते हैं. सेकेंडरी एंड टर्शियरी पार्ट्स ऑफ द बॉडी लड़कियों के अलग अलग होते हैं. और तीसरी बात यह कि एडोलेसेंस का अनुभव लड़के और लड़कियां अलग अलग तरीके से करते हैं. लड़कों की आवाज़ बदलने लगती है, उनके हाथ बड़े बड़े होने लगते हैं, उनकी थोड़ी थोड़ी मूछें निकलने लगती हैं, वो अपने आप को ऑकवर्ड महसूस करते हैं. लड़कियों के भी बॉडी में कुछ और तरह के चेंजेस होते हैं, वो अलग तरह से अपना अनुभव करती हैं. कई बार लड़कियां एकाकी हो जाती हैं, लड़कों में ग्रुप बनाने लगते हैं, लड़कियां एकाकी हो जाती हैं. इंग्लैंड और अमेरिका में लड़कियों का ग्रुप बना लेती हैं. सो द एक्सपीरियंस ऑफ एडोलेसेंस इज डिफरेंट इन बॉयज़ एंड गर्ल्स. But apart from these three differences, the chromosomal structure, the secondary and the tertiary parts, and adolescence, प्रकृति ने लड़के और लड़कियों में कोई फ़र्क नहीं किया है. पर ये बात हम लोग अक्सर मानते हैं कि आपसे भी अगर पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? लड़कियां कैसी होती हैं, लड़के कैसे होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? लड़कियां कैसी होती हैं?
ज़्यादातर लड़कियां आप कहते हैं इंट्रोवर्ट होती हैं, और कैसे होती हैं? कम होती है लड़कियों में। और कोमल होती हैं, भावुक होती हैं, मधुर, मृदुभाषी होती हैं। तो अक्सर हम लोग ये मानते हैं कि लड़कियां एक प्रकार की होती हैं और लड़के कैसे होते हैं? एग्रेसिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, कठोर होते हैं, रैशनल होते हैं। I have had an experience of working with a large part of young people in India and Nepal, with teachers, with UNICEF officials, with communication officers, with also administrative officers. And at one time, we were doing this exercise in Uttar Pradesh, and we were saying that, okay, आपके पीछे एक चीफ मिनिस्टर की तस्वीर लगी है, एक प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर लगी है, और उस ज़माने में उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर माननीय मायावती जी थी, और भारत के प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी थे। तो फिर हम लोग पूछ रहे थे कि बताइए कौन मृदुभाषी है और कौन एग्रेसिव है, कौन कठोर है और कौन कोमल है। तो सब लोग आपकी तरह से मुस्कुराने लगे और कह रहे नहीं नहीं सर, ये तो एक्सेप्शनल है। पर ये बात एक्सेप्शन नहीं है। सभी लड़कियां और लड़के, सभी बच्चियां और बच्चों में कोई भी गुण ऐसा नहीं होता कि जो केवल बच्चियों में हो और बच्चों में ना हो। क्या लड़कियां गुस्सा नहीं करती? बहुत ज़्यादा करती हैं। तो अगर मेरे दो बच्चे हों, एक लड़का एक लड़की, दोनों से मैं कह दूं आप नाइट शो नहीं जा सकते, तो लड़का मोटरसाइकिल उठा के बाहर निकल जाएगा और लड़की कमरा बंद करके अपना हेडफोन लगा के ज़ोर ज़ोर से गाना सुनने लगेगी, और हमारी बात दोनों ने नहीं सुनी। तो क्रोध तो दोनों को आता है। प्रेम करने की बात है तो अगर आप किसी भी विमेन हॉस्पिटल के बाहर भी चले जाइए तो आप देखेंगे ढेर सारे लड़के खड़े होंगे। वो कहेंगे उसकी बहन बीमार थी तो हम खून देने चले गए, वो उसके लिए कुछ सामान लेने आ जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। तो खूब सारे लड़के अपने दोस्त की बहन, भाभी, बुआ की मदद करने के लिए भी खड़े हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो मोहब्बत नहीं करते, वो भी मोहब्बत करते हैं। वहाँ लड़कियाँ नहीं दिखाई देती क्योंकि लड़कियों को अलाउड नहीं है, वो रात को रुक जाती है एक अंदर, बाकी सब घर से खाना भेज देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्यार करना, गुस्सा करना, क्रोध करना सिर्फ लड़कियों की फितरत है या लड़कों की फितरत है। बट व्हाट आर यू अलाउड टू डू एंड व्हाट आर यू नॉट अलाउड टू डू डिपेंड्स अपॉन योर कल्चरल प्रैक्टिसेस एंड वेयर एंड व्हेन यू आर। तो किसी समाज में किस ज़माने में कौन सी चीज़ अलाउड होगी लड़कियों को, कौन सी चीज़ अलाउड होगी लड़कों को, ये अलग अलग तय होता है। कोई ऐसा गुण नहीं है जो केवल लड़कियों में होता हो और कोई ऐसा गुण नहीं है जो केवल लड़कों में होता हो। और इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको बार बार देना चाहता हूँ, जो मैं अक्सर देता हूँ, कि जब अंग्रेज़ हिंदुस्तान में आए तो हिंदुस्तान में आके वो सबसे पहले कलकत्ता में आए और बंगाल का उन्होंने व्यक्ति देखा। आप लोग मानते हैं कि बंगाली आदमी कैसे होते हैं और पंजाबी आदमी कैसे होते हैं? बंगाली आदमी कैसे होते हैं? ज़्यादा शार्प होते हैं। और क्या रुचियां होती हैं बंगालियों की? ज़्यादा कल्चर और लिटरेचर में। और पंजाबी लोगों की? एग्रेसिव होते हैं, ज़्यादा मस्त टाइप के होते हैं। पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप यहाँ से यूनिवर्सिटी से ज़रा सा निकलिए और थोड़ा सा जब आप ब्रिज क्रॉस करेंगे तो आपको एक बंगाली आदमी की मूर्ति दिखाई देगी, और वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा सेना चलाने वाला माना जाता था। इसने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी और उसने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे ज़्यादा मिलिटेंट चीज़ों का प्रयोग करा। श्री अरविंद यहाँ पर बमबारी करते थे, वो भी बंगाली थे, उनका नाम था अरविंद एक्रोइड घोष। और सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में भी बंगाली लोग आगे होते हैं। सबसे पहला इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाला उसका नाम था मिहिर सेन। सबसे ज़्यादा फुटबॉल के दीवाने बंगाल में पाए जाते हैं। तो एग्रेशन, स्पोर्ट्समैनशिप, ये सब आपको वहाँ दिखाई देती है। पंजाबियों जिनको आप कह रहे हैं कि वो एग्रेसिव होते हैं, मस्त होते हैं, आप जैसे ही अपना खोलते हैं अपना गाना तो दिल को छू लेने वाले गाने आपको
जगजीत सिंह, अरिजीत सिंह और साहिर लुधियानवी के कलाम, शीरी फरहाद की दास्तानें, लैला मजनू की दास्तानें, हीर रांझा की दास्तानें, सारी शेर व शायरी, सारी गज़लें आपको पंजाब की ज़मीन से, बुल्ले शाह की ज़बान से लेकर आज तक सुनाई देती हैं। फिर भी आप, तो जो हम स्टीरियोटाइप बनाते हैं वो स्टीरियोटाइप केवल आदमी और औरत का नहीं है, वो पंजाबी आदमी बंगाली आदमी का भी हमने ऐसा बना लिया। तो अंग्रेज़ जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने भी कहा कि अरे बंगाली आदमी तो बिल्कुल, यहाँ हिंदुस्तान के आदमी ज़नाने होते हैं, इंडियन मेन आर एफेमिनेट। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि बंगाली आदमी तो देवी जी के सामने यूँ होकर के नाच भी रहा है, गा भी रहा है, बच्चे को गोदी में लेके भी घूम रहा है। उन्होंने कहा ये कैसा आदमी है। पर अगर आप दूसरी नज़र से देखें तो हिंदुस्तान के आदमी भी अंग्रेज़ आदमियों की अगर उस ज़माने की तस्वीर देखें तो रॉबर्ट क्लाइव से लेके विलियम बेंटिक तक वो आपको कैसे नज़र आते हैं। वो लोग सफ़ेद रंग का विग पहनते थे जिसमें कर्ल्स होते थे, पीछे एक चोटी बनाते थे जिसमें लाल रंग का रिबन होता था, मुंह अपना सफ़ेद पेंट करते थे, लाल रंग की लिपस्टिक लगाते थे, जैकेट पहनते थे जो कि सुर्ख होता था, उसके ऊपर खूब सारी एम्ब्रॉयडरी होती थी। तो हिंदुस्तानी आदमी भी कह सकते हैं ये कैसे मर्द हैं। तो मर्द होने की परिभाषा, औरत होने की परिभाषा अलग अलग ज़माना, अलग अलग क्षेत्र अपनी अपनी तरीक़े से तय करता है। स्वाभाविक रूप से मर्द और औरत कुछ नहीं होते। बुंदा पहनने वाले राजस्थान के आदमी, चूड़ी पहनने वाले पंजाब के आदमी, स्कर्ट पहनने वाले भूटान और स्कॉटलैंड के आदमी। तो कौन से कपड़े आदमियों के हैं, कौन से कपड़े औरतों के हैं, कौन से झुमके औरतों के हैं, कौन से आदमियों के हैं, ये इससे मर्दानगी और जनानापन तय नहीं होता। सो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट द होल आइडिया ऑफ जेंडर रोल्स, masculinity and femininity are, thank you, completely determined by society. It has nothing to do with how nature has made us. तीसरी बात यह है जिसको हम मानते हैं सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी का सवाल क्या है कि एक व्यक्ति दूसरे किस व्यक्ति के साथ अपना पार्टनरशिप करना चाहता है। तो लड़के लड़कियों को पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कों को पसंद करती हैं, कुछ लड़के लड़कों को पसंद करते हैं, कुछ लड़कियां लड़कियों को पसंद करती हैं, कुछ लड़के लड़कियों दोनों को पसंद करते हैं, कुछ लड़कियां लड़के लड़कों को दोनों को पसंद करती हैं, कुछ ऐसे हैं जो किसी को पसंद नहीं करते हैं। सो सेक्सुअलिटी हैज़ मैनी शेड्स, फ्रॉम कंप्लीटली एसेक्सुअल टू डिवाइन सेक्सुअलिटी जो भगवान में अपना पार्टनर ढूंढते हैं, टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ फ्रेमवर्क्स। और बड़ी रोचक बात यह है कि हम फिलॉसफी डिपार्टमेंट में बैठे हैं, ऐसे डिस्कशंस आपको अगर देखने हों तो सबसे पुराने प्लेटो के डायलॉग्स में भी, सिम्पोजियम में जो कि अपने आप में प्रेम के बारे में चर्चा करता है, वहाँ पर भी ये डायलॉग मिलते हैं। तो एक ये था कि भाई प्रेम किसकी संतान है, तो उन्होंने कहा प्रेम जो है वो उसका कोई माता पिता नहीं है, वो केओस की तरह है। एक ने कहा कि नहीं उसके माता पिता हैं, एक पिता माता उसके हैं अभाव और प्रयत्न। सारे लड़कों को ये पता ही है कि जब वो प्रेम में होते हैं तो उनको ऐसा ही अभाव भी होता है और प्रयत्न भी करते हैं। उनको लगता है कि हाय वो मेरे पास नहीं है और उसके लिए वो प्रयत्न करते हैं, वो डोमिनोज जाते हैं और वो कहाँ जाते हैं, तरह तरह की चीज़ें खरीद के लाते हैं। तो अभाव और प्रयत्न प्रेम का हिस्सा है कि माता पिता हैं, बिकॉज यू लव समथिंग विच यू डोंट हैव and therefore you make an effort to get over there. So that's one. And one very interesting story which was given in a symposium was that God had made 3 sets of people. One जिनके 2 सिर थे, 4 हाथ थे, 4 पैर थे और 2 उनके जननांग थे। तो एक ऐसे 3 बनाए थे, एक जिसमें दोनों आदमी थे, एक जिसमें दोनों औरतें थीं और एक जिसमें आदमी और औरत दोनों थे। और उसके बाद ये ऐसे जुड़े जुड़े थे, पर ये सब इतने अहंकारी हो गए कि बाद में खुदा ने कहा कि अब इनको हम काट देते हैं, और भगवान ने इनको काट दिया। अब जब काट दिया तो दे आर सीकिंग यूनियन। तो जो लड़का लड़की अलग अलग हुए थे वो लड़का लड़की जुड़ना चाहते हैं, जो लड़का लड़का अलग हुए थे वो लड़का लड़का जुड़ना चाहते हैं, जो लड़की लड़की अलग जुड़े थे वो जुड़े। Why I am telling you this story is that almost 2500 years back, it's not a part just of the present day generation, it was a discussion over there and they were trying to also naturalize it कि ऐसी बात नहीं है कि एक सही एक गलत है, they are
जो जिससे जुदा हुआ था वो उसको ढूंढ रहा है. That is the kind of a story that they were creating in order, and you know that in philosophical history, the pre-Socratic times and Platonic times, in fact, the more important relationship was the same-sex relationship rather than the heterosexual relationship. So again, whether it was right or wrong, whether it should be accepted or not, is a debate which can continue. But the debate existed. And the other example which I also wanted to share with you was that it is also part of the folk culture. That in Rajasthan, when I was working with communities, they also had a story कि एक बीजा और तीजा की story वहाँ पे थी कि एक parents थे, they had decided that we love each other and we are great friends of each other. So what we should do is that when our children are born, let us marry them together. And what happened was both got daughters. अब क्या करें? वो लोग खेलती रहती थी, पर उन्होंने कहा कि भाई हमने तो भगवान के सामने प्रॉमिस किया था इनके पैदा होने के बाद. So when they were of the age of marriage, they married them to each other. When they were married with each other, they were very happy. But they said, but everybody is a man and a woman. तो हम लोग भगवान से फिर प्रार्थना करते हैं कि हम में से एक को आदमी बना दो. तो उन्होंने एक को आदमी बना दिया भगवान ने. जब एक को आदमी बना दिया तो फिर तो वो आदमी बन गया. उन्होंने कहा अब तुम मेरा खाना बनाओ, अब तुम मेरे कपड़े धो, अब तुम ये काम करो. So then after some time when they said कि भाई ये क्या हो रहा है, we were very happy together, we were equal, but now ये तो एक आदमी बन गया. तो उन्होंने भगवान से फिर प्रार्थना करी कि भाई हमको फिर से लड़की बना दो. तो दोनों लड़की बन गए और then they lived. Again, what I'm trying to say is that this is part of a folk tradition. So from classical tradition of philosophy 2,500 years back to the folk traditions of India, these are part of the conversation everywhere. Don't think कि ये कोई नई बात है जो कि इसी ज़माने में हो रही है, जो कभी नहीं हुई थी, जो बड़ी रहस्यमय है, जिसके के बारे में चर्चा करना अपने आप में बड़ा घातक है और बड़ा गलत है. These are part of human relationships and they are discussed. So the questions of gender, questions of sex, questions of sexuality are important questions for all of us, and they need to be discussed and understood. What we are trying to do right now is only that if we talk about discrimination between men and women, we also have one very important thing which everybody says, why don't you talk about the third gender? Now, one of the things that I want to tell you here is that the idea of the third gender itself is not a simple idea. In India, what we have done is that कि हमने कहा ये आदमी है, ये औरत है, और जो इन दोनों में फिट नहीं होता उस सबको हमने एक बड़े डिब्बे में डाल दिया. इनमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके की कंफ्यूज्ड बॉडी पार्ट्स थे, जिनके अंडर डेवलप्ड बॉडी पार्ट्स थे. ऐसे लड़के जो सोचते थे कि हम गलत बॉडी में पैदा हो गए, हमको लड़की पैदा होना चाहिए था. ऐसी लड़कियां जो सोचते थे कि हम गलत बॉडी में पैदा हुए, हमको लड़का पैदा होना चाहिए था. ऐसे लोग जिनको हम लोग हिंदुस्तान में आमतौर पर हिजड़ा कहते हैं, जो असल में कोई जेंडर नहीं है, कोई सेक्स नहीं है, वो अपने आप में एक प्रोफेशन है कि कुछ लोग आपके घर में आपके बच्चे पैदा होने पर आपकी शादी में आकर नाचते हैं, गाते हैं और दुआ दे के जाते हैं. इट्स अ प्रोफेशन. You don't know what their body parts are because close studies tell you that a large number of them were castrated men, and in many cases the person who was looking after them was actually a Tamilian woman. So it's not necessarily. उसके अलावा जिसको हम ट्रांस वुमन या ट्रांस मैन कहते हैं, वो कौन है? वो लोग हैं जिन्होंने अपने बॉडी को दूसरे में ट्रांसफॉर्म कर लिया है. अब यहाँ पर जो हिंदुस्तान में नालसा जजमेंट आया, उसके बाद हम लोगों ने क्या कहा? हमने कहा कि हमने अभी भी कानूनी तौर पर केवल ये वाली बात स्वीकार करी है कि एक तो हमने वो आर्टिकल जो कि होमोसेक्सुअलिटी को क्रिमिनलाइज करता था उसको हटा दिया. वो हमको हटाना कंपलसरी था, क्योंकि जब आप थर्ड जेंडर को मान रहे हैं तो उनके जो रिलेशनशिप हैं वो आपके स्टैंडर्ड रिलेशनशिप्स में तो नहीं फिट होंगे, तो वो आपको डिक्रिमिनलाइज करना पड़ा. ये आपने किया. अब आपने क्या कहा कि लेकिन अभी भी ये कहा कि आपको हॉस्पिटल का या डॉक्टर का एविडेंस लाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि आपका जेंडर क्या है. बहुत सारे एनजीओज और बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सही भी विरोध कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि कोई लड़का है जो अपने आप को लड़की महसूस करता है, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म कर सके. और ये भी आपको पता है कि बॉडी ट्रांसफॉर्म करने के कितने घातक परिणाम होते हैं. आपने इतने इंजेक्शन लगा लिए अपने बॉडी एनहांसमेंट के, और उसके बाद आपको पता है कि इतना बड़ा अमीर तेजस्वी
Rachanatmak Rituparna Ghosh, he also died because of the overdose of hormonal injections. So some people may find it very expensive, some people may say we don't want to have that, and yet I am a woman. पर प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर एक गर्ल्स हॉस्टल का इंचार्ज हूँ या बॉयज़ हॉस्टल का इंचार्ज हूँ, तो मैं अभी इमीडिएटली इस सर्कमस्टेंस में जो नॉन स्टैंडर्ड हमारे चीज़ उसको कैसे एंटर कर लूँ, ये मेरी भी प्रॉब्लम है. ऐसे संदर्भों में मुझे लगता है इंडिया की गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ा प्रोग्रेसिव जजमेंट लिया है और अब और प्रोग्रेस की ज़रूरत है जो आगे होगा. आगे हम लोग ऐसे हॉस्टल्स बना सकते हैं, ऐसे बाथरूम्स बना सकते हैं, ऐसी पब्लिक स्पेसेस बना सकते हैं जहां सुरक्षित रूप से सब लोग साथ साथ रहें. लेकिन जब तक ऐसी नहीं बनी है तब तक जहां तक हम पहुंचे हैं इसको भी हमें एक प्रोग्रेसिव जजमेंट मानना चाहिए. सो दैट्स द पोजीशन विच आई एम राइट नाउ सेइंग दैट दिस इज एज मच एज इट कैन गो. राइट सर, बट आपने जैसे कहा कि बायोलॉजिकल जो प्रूफ लाएगा वो तो चलिए ठीक है, लेकिन जो आइडेंटिफिकेशन वाली है कि आई आइडेंटिफाई एज अ वुमेन, तो इसका सर मिसयूज़ ये भी तो हो सकता है. जैसे अभी हम कह दें कि आज शाम को मैं आई आइडेंटिफाई एज अ वुमेन और हम कैलाश हॉस्टल में जाकर रुक जाए और वहाँ कुछ कांड कर दें, तो इस तरीके का मिसयूज़ उसका कुछ पैरामीटर. राइट. इसी वजह से हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं कि हम अभी एक तो मिसयूज़ की भी बात है जो कि कभी भी हो सकती है. राइट. द क्वेश्चन वाज दैट आई कैन misuse my identity and my identification, and therefore I claim, when I claim a fluid identity, then I may be misusing it. I fully agree with that you may be misusing that. Secondly, what I'm saying that even if I'm not misusing that, the present structures with the societal history and political arrangements and economic arrangements as of now still will take time, and when we feel safe, like we find that in many of the hostels, the PhD hostels are co-educational, not undergraduate. So we hope that children get more mature. We also get more confident that now they will live more comfortably, and therefore we allow everybody to do it. But it takes one step at a time, and I think that we should not say that we have not taken any steps. We should appreciate the steps that we have taken so far. And in that also what I am saying is that कि ये कि नहीं अभी अभी हमने इतना स्टेप लिया तो हम आगे नहीं लेंगे, इसमें भी मैं ये रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये डिबेट तो 5000 साल पुराना है, तो अभी भी बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए अभी और जल्दी जल्दी करने की ज़रूरत है. ये कहना कि ये कोई स्टेप नहीं लिया ये गलत है, पर एक ले लिया तो दूसरा नहीं लेंगे, इस बात की भी बात सही नहीं है, क्योंकि चाहे वो किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, उस डिस्क्रिमिनेशन के स्टेप्स जल्दी जल्दी लेने चाहिए, क्योंकि हमें 5000 साल हमने इंतज़ार करा, अब तो हमें लगता है कि सारी चीज़ें मेरी ज़िंदगी में हो जानी चाहिए, मुझे क्या पता कि आगे क्या होने वाला है. So that's one interesting thing which we need to see in terms of that. And I was asked by Rolly to talk about same-sex marriage. So and that also I'm only trying to say that I know for a fact that in many states of United States, same-sex relationships are not criminal. But from that you will immediately come to legitimization of same-sex marriage does not follow. So we'll have to look at that step by step. Although I think, and people are saying कि भाई हमें पर्सनल लॉज देखने पड़ेंगे, हमको लॉज ऑफ अडॉप्शन देखने पड़ेंगे, हमको लॉज वो सब देखने पड़ेंगे, पर देखिए किसने मना करा. ये बात सही है कि जब आप सेम सेक्स मैरिज अलाउ करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी, पर देखनी पड़ेंगी इसलिए नहीं करेंगे ये आर्गुमेंट नहीं है. यू हैव टू सी दैट एंड इट वुड बी in the fitness of things, because there are many people who say कि मैरिज का इंस्टीट्यूशन ही अपने आप में प्रॉब्लमैटिक है. तो सेम सेक्स मैरिज हो चाहे हेट्रोसेक्सुअल मैरिज हो, मैरिज को ही ख़त्म कर देना चाहिए. Many people said कि let's go for live-in relationships. But from my own experience and many friends with whom we have been working, we find that live-in relationships are also not free from trouble. They will have the same troubles which you have in formal marriages, because the trouble is not with the institution but with living together. तो भाई बहन साथ रहते हैं तो झगड़ा करते हैं, माँ बेटी रहते हैं तो झगड़ा करते हैं ना, और उसी तरह से पति पत्नी भी झगड़ा करते हैं और लवर्स भी झगड़ा करते हैं, और उनमें ये सारे झगड़े होंगे कि
कौन कितना काम करेगा, कौन कितना खर्चा करेगा, किस चीज़ पर खर्चा करेगा. So the trouble are with relationships, and we need to develop a healthy sense of self wherein we are able to live with each other better. Same-sex marriage will be many people are asking for same-sex marriage because they are saying that there are many peculiar kinds of laws right now. A single person is allowed to adopt, but a person in a same-sex relationship is looked at with suspicion. Now, that they are saying कि जब आप सिंगल आदमी को, सिंगल औरत को अडॉप्ट करने दे रहे हैं, तो दो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, तो उसमें आपको सडनली कैसे आ जा रहा है? इट सीम्स लीगली, एथिकली, लॉजिकली स्ट्रेंज. Therefore, the debate is going on, and I think it's a very good idea that debate must happen. And I must say that very importantly, that in India, where we are a democracy, lawyers and judges don't make law. Laws are made by us as people, and our elected representatives debate about that, and they also take legal opinion, and then laws are made. The judges and the lawyers are not even interpreters of the law, they only execute it out. तो ये लॉ की प्रॉब्लम ये हमारी प्रॉब्लम है, और हमारी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? डिबेट से, और ऐसा डिबेट हो रहा है. आई एम वेरी हैप्पी. So that's one position about that. But the other major thing which I want to say, and that's my position also regarding the trans woman and the trans man. Many of us think कि आदमियों को औरतों के लिए अट्रैक्टिव बनने के लिए विशेष प्रयत्न करके अपने आप को अधिक आदमी दिखाने के लिए बड़ी बड़ी मूछें और बड़ा बड़ा प्रोटीन शेक लेना अपने आप में उतनी ही बड़ी प्रॉब्लम है जितना कि औरतों को आदमियों को आकर्षित करने के लिए अपनी भौएं हटाना, अपनी खाल चिकनी करना और अपने आप को गोरा बनाना, वो भी उतना ही प्रॉब्लमेटिक है. और हम लोग ये मानते हैं कि आदमियों को अपने स्वास्थ्य के लिए स्वस्थ रहना चाहिए, स्त्रियों को अपने स्वास्थ्य और सुंदरता के लिए रहना चाहिए, दूसरे लोगों को आकर्षित करने के लिए ऐसा नहीं बनना चाहिए. और कहीं ना कहीं पर ये जो ट्रांस वुमन और ट्रांस मैन में एक एक्सेसिव मैस्कुलिनिटी और एक एक्सेसिव फेमिनिटी का भी जो बल दिखाई देता है, वो हम जैसे नारीवादियों के लिए प्रॉब्लमेटिक है. इसका ये मतलब नहीं है कि ट्रांस वुमन की पोजीशन अपने आप में arguable, legitimate नहीं है. They have an argument, but sometimes an excessive masculinity and an excessive femininity, which seems to be a part of the trans man and the trans woman culture, creates certain problems which again must be debated. Which are the areas in which there is a greater discrimination between men and women? That I think I will quickly try to take in another. How many minutes do I have? How many minutes have we covered? We have. So I think we have shorter time. I don't want to go endlessly, but this is something which needs to be deliberated. What are the areas in which we find greatest discrimination between boys and girls? I think one of the very areas, आप सभी लोग बच्चे जितने यहाँ पर हैं, लड़के भी आए हैं, लड़कियाँ भी आई हैं, आप सभी को महसूस होता है कि सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन किस बात पर होता है? लड़कियों के लिए ख़ास तौर से सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होता है मोबिलिटी पे. कहाँ जा रही हो, किसके साथ जा रही हो, कितनी देर तक जा रही हो, कितनी दूर तक जा रही हो, किसको साथ लेके जाओगे? और ये सवाल लड़कों से भी पूछा जाता है, लड़कियों से भी पूछा जाता है, पर लड़के इस सवाल का जवाब देना एक उम्र के बाद बंद कर देते हैं, पर लड़कियों का ये सवाल पीछा उनके बुढ़ापे तक करता है. दादी चली गई थी, कहाँ चली गई थी? So, and you know that this creates a lot of problems. लड़के अक्सर घर पर बता कर आते हैं, लड़कियां घर से पूछ कर निकलती हैं. पूछने और बताने में फर्क होता है. उसी तरह से लड़कियों, जब आप मोबिलिटी में जब आप घर से निकलते हैं तो आप कई सवाल पूछते हैं, कई सवालों के नए जवाब मिलते हैं, उन जवाबों से आप और सवाल पूछते हैं, उनसे आपको और जवाब मिलते हैं. तो मोबिलिटी अपने आप में आपकी एजुकेशन का भी रास्ता खोलती है. आप सब लोग यंग बच्चे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, कुछ एमए कर रहे हैं, आप सबको पता है कि कई बार सब कहते हैं इस साल आज का रिजल्ट आपने देखा, या पहले आप रिजल्ट देखते हैं तो आप कहते हैं बहुत सारी लड़कियां सिलेक्ट हो गई. पर लड़कियों को ज़्यादातर सब कहते हैं कि लड़कियों की सब्जेक्ट कॉम्पिटेंस तो बहुत होती है, जनरल स्टडीज़ में उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है. क्यों ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि
जब लड़के लड़कियां दोनों घर में पढ़ के लौटते हैं तो दोनों फर्स्ट आते हैं। लड़के जल्दी से टीवी खोल के देखते हैं आईपीएल में क्या हुआ और कर्नाटक के इलेक्शंस में क्या हुआ, ये सब वो जानने की कोशिश करते हैं फटाफट कुछ। लड़कियां जब लौटती हैं तो उनकी माँ दिन भर काम करके कहती हैं, बेटा मैंने सारे दिन काम किया था, पराठे मैंने सेक दी, सब्जी तू छौंक दे। अगले दिन इम्तिहान में ये पूछा जाता है कि कर्नाटक इलेक्शन में क्या हुआ था, ये नहीं पूछा जाता कि सब्जी के छौंक में कौन कौन से मसाले डाले गए। हालांकि जिंदा रहने के लिए सब्जी ज़्यादा ज़रूरी है आईपीएल से, लेकिन पब्लिक नॉलेज का जो डोमेन है उसमें आपके ये एग्रीकल्चर, होम साइंस, इन चीज़ों को इन्फीरियर माना गया। इंटरनेशनल नॉलेज आपके ज़्यादा है, कोई स्नोई किसका कुत्ता था, वो आर्चीज़ का कौन दोस्त था, वो सब पब्लिक डोमेन की नॉलेज के हिस्से हैं। सो गर्ल्स लूज आउट ऑन सम अपॉर्चुनिटी टू गेन पब्लिक नॉलेज बाय नॉट बीइंग मोबाइल। मुझे बहुत खुशी होती है जब लड़कियां मोबाइल होती हैं, जब हमने देखा लड़कियों के पास साइकिल आती है, लड़कियों के पास एक्टिवा आती है, लड़कियां कार चलाती हैं, लड़कियां मोबाइल लेकर जाती हैं, तो उनकी मोबिलिटी बढ़ती है, वो अपने साथ और लोगों की भी मदद कर पाती हैं। हम लोग ये अक्सर अभ्यास करते हैं कि अगर आप किसी की आंख पर पट्टी बांधकर उसको साथ साथ लेकर चलें तो क्या होता है, कौन बंधा हुआ है? बांधने वाला भी उतना ही बंधा है जितना कि बंधा हुआ व्यक्ति है। और आपको ये पता चलता है कि जब आप बंधन खोलते हैं तो दोनों खुल जाते हैं। तो जब आदमी ये जिम्मेदारी लेते हैं कि नहीं, दादी का काम भी मैं करूँगा, बीबी का काम भी मैं करूँगा, अम्मा का काम भी मैं करूँगा, बेटी का भी काम करूँगा, तो बड़ा ताकतवर तो महसूस करते हैं, बट दे आर बर्डन विथ ऑल ऑफ दैट। इफ एवरीबडी इज डूइंग देयर ओन वर्क, देन द बॉयज आर ऑल्सो अनबर्डन एंड द गर्ल्स आर ऑल्सो फ्री। द बॉयज आर नॉट सेटिंग द गर्ल्स फ्री। लड़कों को ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि वो लड़कियों को फ्री कर रहे हैं, वो उनका इंसानी हक है। द गर्ल्स विल बी फ्री, द बॉयज विल बी फ्री। व्हेन द गर्ल्स आर फ्रीयर, द बॉयज आर ऑल्सो फ्रीयर। And this is what we need to understand in terms of mobility. The other great restriction that we have is on production. Do women produce or not? बार बार हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि women are 11% participation है, 15% participation है, 20% participation, but we all know that औरतें बहुत सारा काम करती हैं जो अपने आप में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। क्यों नहीं रिकॉर्ड किया जाता? क्योंकि डोमेस्टिक वर्क को हम काम नहीं मानते। डेफिनेशन ये थी 8 hours of continuous monetized labor, 8 घंटे का कंटिन्यूस पैसे वाला काम तो काम है, बाकी काम ही नहीं है। पर औरतें घर में झाड़ू लगा रही हैं, खाना बना रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, बच्चों की देखभाल कर रही हैं, बुजुर्गों का सेवा कर रही हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में रुपाई के काम में भी औरतें जा रही हैं। बाद में जब कटाई हो जाती है तो उसको, जिसको विनोइंग कहते हैं या पॉलिशिंग का काम कहते हैं, झलाई का काम, उसमें सब औरतें हैं। जानवरों की सेवा करने में जानवरों को नहलाती भी औरतें हैं, दूध भी वो दूहती हैं, बच्चे भी उनके पैदा करती हैं, छोटी मोटी चोट भी वो ठीक करती हैं। पर जानवर और ज़मीन क्योंकि औरत के नाम पे नहीं है, इसलिए उसकी इनकम नहीं मानी जा रही। जब आपने कोई इनकम ही नहीं है तो आपका वर्क लेबर कैसे काउंट किया जाएगा? क्योंकि लेबर की डेफिनेशन तो थी मोनेटाइज्ड वर्क। तो अपने आप में बहुत सारा काम औरतों का गिना नहीं जाता। दूसरी बात ये, जब काम मुश्किल होता है तो औरतें करती हैं, जब काम पैसे मिलने लगते हैं, आसान हो जाता है तो आदमी करते हैं। घर में औरतें कपड़े सीती हैं, बाहर टेलर आदमी होता है। घर में औरतें खाना बनाती हैं, शेफ़ आदमी होता है। घर में औरतें कपड़े डिज़ाइन करती हैं, बड़ा डिज़ाइनर अबू जानी हो जाता है। सारे काम, घर में कपड़े औरतें धोती हैं, बाहर पैसे मिलते हैं तो ड्राई क्लीनर आदमी बन जाता है। तो एक तो ज़्यादा पैसे मिलते ही सारे काम आदमी ले लेते हैं। आसान जब काम हो जाता है तो आदमी करने लगते हैं, है ना? चक्की पीसना है ऐसे 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 करके, आदमी तो कभी नहीं चक्की पीसते सिर्फ जेल में पीसते, जेल के बाहर कभी नहीं पीसते। पर जब बटन की चक्की आ जाती है तो कौन करता है? तोलूमल चक्की वाला, गुप्ता चक्की वाला, एवरीबडी। व्हेन द वर्क बिकम्स ईजियर, द मेन टेक ओवर। ये तो ऐसा जनरलाइजेशन जैसे हजार्डस वर्क हैं, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं और ये टॉयलेट क्लीनर्स हैं, ये तो फिर ऐसे देखा तो ज़्यादा मेल ज़्यादा होते हैं। Not true. Right. Take an example. It's a very interesting example. If you look at America, in America, in the coal fields, there used to be as many men as women. But when they started nationalizing coal fields, and then they started introducing more security for men, including giving them boots and giving them helmets to work over there, then very cunningly they said, now women can go home. Because now
the work was becoming less hazardous and more money and security was coming to men. So it's not always true that men have been doing hazardous work. Very hazardous work has been done by women. So the question is, and this is true for the entire coal fields and the oil fields in the United States, nationalization of them and building greater security. And again the example is कि जब काम को आसान करने की कोशिश करते हैं. I'm extremely glad that we have Dr. Prashant Shukla, the very important member of the Jensen cell, and as we have said in this talk, it is this Jensen team which has actually been doing extraordinary work for the university under the able leadership of the Vice Chancellor and Professor Roli Mishra with other members. So what we were quickly trying to do was that we are talking about mobility, production, and what I was trying to call attention to, that in production, even if we introduce the element of women's labor, then macroeconomically as well as microeconomically औरतों के लेबर को और प्रोडक्ट ऑफ लेबर को इंट्रोड्यूस करने से ऐसा कई इकोनॉमिस्ट्स का कहना है, आशा कपूर मेहता, Malini Banerjee and Vibhuti Patel and many other women economists have brought this to our notice, that अगर औरतों के द्वारा किए गए श्रम की सर्विसेज और प्रोडक्ट को हम इंक्लूड करें तो we will look 17% richer than we do. Therefore, it is very important for us to introduce the labor done by women. That's one question. So production में औरतों को न गिनना, उनको आधा पैसा देना, and lower technology, taking over by men, all of these things are taken into consideration. The third thing that we need to take into consideration in areas of discrimination is one very important area with which we are dealing here right now as educators, education. लड़कियों का education के संदर्भ में हम लोग कई 4-5 चीज़ों को देखते हैं. Access to education, quality and retention of education, literacy and functionality. और इन सभी के संदर्भ में जब हम देखें तो एक बड़ा समय ऐसा था जब लड़कियों को लोग शिक्षा नहीं देते थे. हिंदुस्तान में अभी भी ये सवाल उठता है, हालांकि कई रिसर्चेस अब ये कहती हैं कि अब जेंडर गैप इंडिया में ख़त्म हो गया है, लगभग ख़त्म हो गया है लड़के और लड़कियों का प्राइमरी स्कूल में एनरोलमेंट पे. रिटेंशन भी बढ़ा है क्योंकि बहुत सारी स्कीम्स ऐसी चली, मिड डे मील की स्कीम मिली, फ्री यूनिफॉर्म्स की स्कीम मिली, फ्री बुक्स की स्कीम मिली, मदर्स मीटिंग करने का सवाल शुरू हुआ, मीना मंच शुरू हुआ, कन्या विद्याधन देने की बात हुई और लड़कियों को साइकिल देने की बात हुई, आगे चलकर लैपटॉप और ये सब जो दिए गए, इससे लड़कियों का एनरोलमेंट बढ़ा है. पर ये एक बहुत बड़ा लंबा सवाल था दैट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम द गर्ल्स वर नॉट एनरोल्ड. द सेकंड क्वेश्चन वाज दैट जब लड़कियां आएँ तो उनको क्या पढ़ाएं. तो क्या लड़कियों को कुछ अलग पढ़ाना चाहिए, लड़कों को कुछ अलग पढ़ाना चाहिए? शुड देयर बी ए डिफरेंशियल करिकुलम? कई लोगों ने कहा कि नहीं, लड़कियों को हम संस्कृत और होम साइंस पढ़ाएंगे, लड़कों को डरना नहीं चाहिए कि लड़कियों के कंपटीशन में लड़कियां आ जाएंगी. लड़कों को बहुत डर लगता है कि लड़कियां आ जाएंगी, और आप लोग देखते हैं, रिजल्ट्स भी देखते हैं, लड़कियां केवल आ नहीं जाती हैं, फर्स्ट भी आने लगती हैं सब. तो अब आपका क्या होगा? तो लड़कों को बहुत डर लगता है लड़कियों से. तो ये हुआ कि नहीं, पे लड़कियों को कुछ अलग पढ़ाना चाहिए. एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दैट अभी भी डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स, इफ़ यू लुक एट द सब्जेक्ट्स, देयर इज अ सब क्लासरूम्स में आई वाज डूइंग क्लासरूम ऑब्जर्वेशन. मैथ्स की क्लास में लड़कियां पीछे बैठी हैं, होम साइंस की क्लास में लड़कियां सामने बैठी हैं. कई जगह पर यह था कि लड़कियों को होम साइंस, लड़कों को मैथमेटिक्स दिया जाएगा. लड़कियों को एक कविता सिखाई जाती थी, चल मेरी चक्की शामो शाम, आटा पीसना तेरा काम, पीसूंगी पिसाऊंगी रोटियां बनाऊंगी, भैया रोटी खाएगा, बाबू बनकर आएगा, चटक चुनरिया लाएगा, बड़ा मज़ा आएगा. So one, you are not teaching girls, and then you are teaching them that you have a standard role to stay at home and cook food, and you should be stupid enough to be happy कि वो चटक चुनरिया लाएगा, बड़ा मज़ा आएगा, बस उसी में खुश हो जाओ. So, and this is true not only of the Totaram ki Pathshala, it is true for all the convents that we went to. In the convents also, what are little girls made up of and what are boys made up of. So, when it comes to gender discrimination, this is fairly much the same. Myra Sadker and David Sadker have done longitudinal studies in America for 7 years and 10 years, and they have found कि classrooms के अंतर्गत भी जब teachers जाते हैं तो वो लड़कियों से कहते हैं कि oh, you have a very good writing, carry on. और लड़कों से कहते हैं work hard or else the cookies will take over. तो लगा तो ऐसा कि आपने लड़कियों की तारीफ़ करी और लड़कों को डांटा, पर आपने ये कहा कि लड़कियों की अच्छी राइटिंग है, इतना काफ़ी है, उनको तो सिर्फ झूठ मूठ का सर्टिफिकेट चाहिए ताकि उनकी शादी हो जाए, लड़कों को मेहनत करने की ज़रूरत है. और इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं मैलेफिक जेनरोसिटी, कि आपने दया तो करी पर उसके आपकी इंटेंशन अपने आप में बुरी है.
So it's not just, it's almost a global phenomena and we have to take cognizance of that. हम पढ़ा क्या रहे हैं, चाहे वो फिलॉसफी की क्लास हो, चाहे वो इंग्लिश की क्लास हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस की क्लास हो, चाहे वो साइंस की क्लास हो, लड़कियां क्लास में आके क्या महसूस करती हैं? क्या उनको विमेन साइंटिस्ट के बारे में बताया जाता है? क्या उनको विमेन फिलोसफर्स के बारे में बताया जाता है? क्या उनको विमेन इकोनॉमिस्ट के बारे में बताया जाता है? क्या उनको ये बताया जाता है कि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं पर इतने साल में हमने विमेन के कंट्रीब्यूशन को क्यों नहीं रिकग्नाइज़ करा? क्या औरतें काम नहीं करती? क्या औरतें हिस्ट्री में इम्पॉर्टेंट नहीं हैं? क्या ट्रबल हिस्ट्री की है या औरतों की है या हिस्ट्री राइटिंग की है? तो हम लोग अब जब जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करते हैं तो हम लोग इस लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे संवाद यहाँ पर हुए जिनके के अंतर्गत हमने मेंस्ट्रुअल हाइजीन से लेके मैरिटल रेप से लेके ईव टीजिंग से लेके इन सारे कठिन और संवेदनशील मुद्दों पर भी बच्चों ने आपस में बातचीत करी। हम जो आज बात रिकॉर्ड कर रहे हैं ये भी उसी का एक हिस्सा है कि इट इज़ टू कीप द कॉन्वर्सेशन ऑन एंड एजुकेशन नीड्स टू लुक एट इटसेल्फ वेरी सीरियसली. There is a very interesting report made by Government of India about women in science. कितनी लड़कियां साइंस पढ़ती हैं, कितनी लड़कियां साइंटिस्ट बनती हैं, कितनी लड़कियों को साइंस के कम्युनिटी में प्रमोशन मिलते हैं. कई बार एंट्री लेवल पर लेक्चरर बन जाती हैं पर रीडर प्रोफेसर नहीं बनती. कितनी औरतें विमेन एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं. आज से कुछ साल पहले जब एक बार 115 या 120 यूनिवर्सिटीज़ का आकलन किया गया तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में मुश्किल से 11 औरतें थीं जो डीन वगैरह थीं या जो अपने आप प्रमोशन से या हेड बन गई थीं, लेकिन रजिस्ट्रार की पोजीशन पे या वाइस चांसलर की पोजीशन पे बहुत कम थी. मैं एक बार फिर ये बात गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि हमारा यूनिवर्सिटी इस बात का एक शाइनिंग एग्जाम्पल है. ऑलमोस्ट सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस पे हमारे यहाँ बहुत ही कॉम्पिटेंट विमेन को वाइस चांसलर ने चूज़ करके डिलिबरेटली रखा, which I think is a very interesting kind of a phenomenon, and not because they were women but because they were competent. So recognition of women and giving them positions of leadership is something very important. जब हम लिबरल फेमिनिज्म की बात करते हैं तो हमें याद आती है मैरी वॉलस्टरॉफ्ट और जॉन स्टुअर्ट मिल, और उनमें ये वाली बात बार बार कही गई थी कि लड़कियों को जब वो समान अवसर दिए जाएंगे शिक्षा के, उच्च शिक्षा के, एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिक्स के और बाज़ार में जोखिम उठाने के, तब हम वास्तव में हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होगी. सो दैट्स वन काइंड ऑफ थिंग विच वी कैन प्राउडली से in terms of education. We also look at media, and you look at media and representation of women, you find that women are generally represented only as bodies, कि वो मेकअप कर लें और मेकअप का सामान ख़रीदें, because it's difficult, as we will come to see in the next moment later on. What about resources? ये आंकड़े बराबर ये कह रहे थे आज से कुछ साल पहले कि तमाम दुनिया की 1% वेल्थ और 10% वेजेस औरतों के पास हैं, बाकी सारा आदमियों के हाथ में है. तो जाहिर है मार्केट में जो मीडिया में जो सामान बेच रहा होगा उसको भी पता है कि ख़रीदने की ताकत किस में है. तो छोटा छोटा पाउडर क्रीम तो औरतें ख़रीद सकती हैं, पर ट्रैक्टर और कार और मकान की ख़रीदी करने के लिए तो आदमी ही होगा, एंड देयरफॉर दे टारगेट द मेन एंड दे आर इंटेलिजेंट इनफ टू डू दैट. So we have to see that how these things are all related to each other, and importantly, what are the institutions where we find the greatest amount of discrimination? I'll quickly want to talk about that today in this small piece, about which we can talk about later at length, and we should. And that is that अगर आप लाइफ साइकिल अप्रोच लें तो बच्चियों के साथ सबसे ज़्यादा तकलीफ़ कहाँ से शुरू होती है? It starts from the womb. लड़की पैदा होने दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? सोनोग्राफी करा के, अल्ट्रासाउंड करा के पता लगा लिया जाएगा कि लड़की है और उसको ख़त्म कर दिया जाएगा. अदिति नाम की संस्था ने 37 दाइयों का इंटरव्यू लिया था. विजय श्रीनिवास मेरी दोस्त थी जिन्होंने वो फिल्म बनाई थी. उन दाइयों से ये कह दिया जाता था बिहार में लड़की पैदा हो तो उसको आग का पत्ता चटा देना, नमक मुट्ठी भर मुंह में दे देना, एक थोड़ा सा चावल दे देना ताकि उनकी आंतें कट जाएं, नहीं तो दूध के भगोने में उसको डुबो देना ताकि वो ख़त्म हो जाए. क्योंकि उनको ये लगता था कि सारी ज़िंदगी लड़की की जब इतनी दुश्वार होने वाली है तो वो एक तरह से दया मृत्यु है कि पहले ही ख़त्म कर दो. लड़कियों को पहला मिल्क मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये एक सवाल है.
अभी भी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ का हिंदुस्तान में बहुत कम है, ट्रेंड दाई तक नहीं पहुंच पाती, ये बड़ी मुश्किल सी सवाल है. सो द क्वेश्चन इज़ द क्वेश्चन अबाउट मेडिकल केयर एंड मैनी अदर थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द क्वेश्चन कि बच्चियों को क्या मिलेगा. उसके आगे का सवाल क्या है, उसके आगे बच्चियाँ को पूरा खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़कियों को वही मिलेगा जो लड़कों को मिलेगा कि नहीं. सारी लड़कियाँ दूध पीती हैं? पीती हैं? अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, नहीं अच्छा लगता. बहुत सी लड़कियां कहती हैं हमको दूध अच्छा नहीं लगता, और उसका कारण होता है कि मिलता ही नहीं है, तो अच्छा ये कह दो कि नहीं अच्छा लगता. एक बहुत ही अच्छी हमारी मित्र हैं जो कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की डायरेक्टर थी, त्रिपुरारी शर्मा, और उन्होंने जब बच्चों के साथ नाटक कर रही थी तो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पे ये हुआ कि क्या प्रॉप रखें, तो उन्होंने रखा दूध का गिलास. उन्होंने कहा दूध का गिलास क्या होता है? दूध का गिलास वो होता है जो लड़कियां लाती हैं और लड़के पीते हैं. So it's interesting that how from everyday things to larger things we understand. लड़कियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन पे स्कूल जाएंगी कि नहीं जाएंगी, बाल विवाह कर दिया जाएगा, दहेज हत्या, वृद्धाओं के साथ दमन, विधवाओं के साथ होने वाला शोषण, और एक जो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में हम लोग कम चर्चा करते हैं, छोटी लड़कियों का घर के अंतर्गत होने वाला यौनिक शोषण. तो चाहे वो चाचा का लड़का हो, मौसी का लड़का हो, जीजा हो, शराब पिए हुए बाप हो, उसके द्वारा किया गया कोई अमर्यादित व्यवहार जो बच्चियों को बहुत तकलीफ देता है. सभी लड़कियों के साथ रेप नहीं हो जाता, पर कोई ऐसा अमर्यादित व्यवहार होता है जिससे कि उनका दिल टूट जाता है, ट्रस्ट टूट जाता है, उनको लगता है कि किसको मैं भाई समझ रही थी, अगर वो ऐसा है तो फिर मैं दुनिया में किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकती. ये बात वो अपने माँ बाप को भी नहीं बता पाती. माँ बाप को बताती हैं तो माँ बाप उनको चुप कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं ये तो हमारा रिश्तेदार था, इसको हम कैसे रोक लें. और ये हम कॉन्फिडेंस अपनी बच्चियों को नहीं दिला पाते कि हम उनके साथ खड़े हैं. सो दिस इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच वी हैव टू लुक एंड सी. तो अपने आप में पैदा होने से लेकर मरने तक बच्चियों के साथ हर जगह पर जोखिम है, और प्रॉब्लम ये है कि ये जोखिम कहाँ है. सबसे बड़ा चाहे वो भ्रूण हत्या हो, कन्या भ्रूण हत्या हो, चाहे वो घर के अंतर्गत बड़ों के द्वारा शोषण हो, चाहे दहेज उत्पीड़न हो, चाहे विधवा उत्पीड़न हो, चाहे वृद्धा उत्पीड़न हो, ये सब फैमिली के अंदर हो रहा है. तो अपने आप में जोखिम बड़ी संस्था है फैमिली. तो क्या हम फैमिली को ख़त्म कर दें? बिल्कुल नहीं. फैमिली के अंदर क्या परेशानी है? हमारी फैमिली पेट्रीलिनियल है, पेट्रीलोकल हैं, पेट्रियार्किकल हैं. बाप सारा निर्णय ले लेता है, सब बातें जो बाप ने कही हैं वो सब मान लेनी चाहिए. और मैं ये बात उदाहरण सबको देता हूँ कि मेरे एक मित्र थे जो यूनिसेफ के चीफ थे, यूहान फेगरशोल, स्विट्ज़रलैंड के. वो ये बात अक्सर हंस के कहते थे कि अगर हम लोग सब लोग अपने माँ बाप की बात मानते होते तो अभी भी हम पेड़ों पे होते, क्योंकि हम सब बंदर थे ना. तो किसी बंदर ने पहले कहा होगा कि नहीं पापा, मैं 4 पैरों की जगह 2 पैरों पर खड़ा हूँगा और मैं सिर ऐसे नहीं करके ऐसे करूँगा. तो अपने वालिदैन की नाफरमानी तो उसने की ही होगी, अपने माँ बाप की उसने बात नहीं मानी होगी, और उसी वजह से हम बंदर से इंसान बने हैं. तो अपने आप में सभी सही गलत बातें सिर्फ इस वजह से नहीं मानी जा सकती क्योंकि वो बड़ों ने कही हैं. अपने विवेक, अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ज़रूरी है. इस वजह से पेट्रियार्की, और पिताजी को सभी बातें सही पता हैं, कि कैसे पता, पिताजी को भी कुछ बातें नहीं पता होती. सो पेट्रियार्की इज़ अ प्रॉब्लम. पेट्रियार्की की जगह क्या मेट्रियार्की होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मदर्स कैन ऑल्सो बी एज प्रॉब्लमैटिक एज फादर्स आर. मेट्रिलिनियलिटी, वंश बाप के नाम से चलना चाहिए. क्यों भाई? आप भारत के अंतर्गत भी अगर देखें तो आपको तमाम ऐसे उदाहरण मिलते हैं. उन्होंने कहा माँ के नाम से पुकारा जाता है, आप कहेंगे वो आंजनेय आप कहते हैं, अंजनी पुत्र हैं, कौनतेय आप कहते हैं. तो आप बहुत अच्छी अच्छी बातें अपने ट्रेडिशन में से भी चाहें तो ला सकते हैं. बहुत सारी बुरी बुरी बातें हैं तो बुरी बातें मत लाइए, अच्छी अच्छी बातें ले आइए. क्योंकि ट्रेडिशन का मतलब ये थोड़ी होता है कि जो कुछ हुआ वही मान लिया. ट्रेडिशन तो वो होता है जो आपने स्वीकार किया. इतिहास में सब कुछ हुआ था, जो स्वीकार किया वो ट्रेडिशन बन गया, जो रिजेक्ट करा वो ऑर्थोडॉक्सी बन गई. सो दिस इज ऑल्सो वॉट यू कैन डू. So family needs to be reconsidered and redesigned, and I'm very happy that the modern Indian family is very very progressive. अब आप देखते हैं कि पापा भी बच्चे का टिफ़िन बना देते हैं, मम्मी भी बच्चे का टिफ़िन बना देती हैं, पापा भी बच्चे का बिस्तर ठीक कर देते हैं. And I remember in education when we were doing
टेक्स्ट बुक्स रिफॉर्म, तो हमने देखा कि किताबों के अंतर्गत आमतौर पर ये दिखाया था कि औरतें घर में हैं, आदमी बाहर हैं। पर हम लोगों ने, मैंने और डॉक्टर पल्लवी भटनागर ने बहुत सारी रिसर्च की थी और हमने गवर्नमेंट को दी थी। उसके बाद यूपी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी किताबें बदली, और अब आप देखेंगे तो अब यूपी गवर्नमेंट की किताबों में भी आपको नज़र आएगा कि मम्मी भी बच्चे का होमवर्क करा रही हैं और पापा भी बच्चे को नहला रहे हैं। So there are changes, but there are many more changes which can come, and I'm sure they will come as and when people will raise their questions. So family needs to be realigned. The other great institution of discrimination is of course religion. तमाम दुनिया के मज़हबों में हमने बच्चियों के साथ बराबरी का सलूक नहीं किया। आप ये तो कहते हैं यत्र नार्यस्य पूज्यन्ते रम्यन्ते तत्र देवता, पर आप साथ ही साथ ये कहते हैं कि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती, पहले पिता के, फिर पति के, फिर पुत्र के अधीन होती है। उसी तरीके से इस्लाम के अंतर्गत भी आप देखते हैं कि माँ का दर्जा बहुत बड़ा है, माँ के दर्जा इतना बड़ा है कि आपको अगर माँ पीछे से पुकार ले तो आप नमाज से भी उठ के आ सकते हैं। लेकिन आप ये देखते हैं कि दुख्तरी का हक़ औरत को बराबर का नहीं होता। तो मज़हब की किताबों में क्या लिखा है, मज़हबी लोग क्या करते हैं, अगर आप इन सब चीज़ों का एक साथ आकलन करें तो आपको ये नज़र आएगा कि कई बार किताबों में कुछ बातें ऐसी लिखी हैं जो ठीक नहीं हैं, और कई बार किताबों में तो नहीं लिखी हैं पर प्रैक्टिस में ऐसी थी। तो हमारा जो रिलीजियस हिस्ट्री है वो कम से कम एक ऐसी है जिसमें कि हमने अपनी बच्चियों के साथ इंसाफ नहीं करा है। और मेरा ये रिकमेंडेशन है, या तो आप रिलीजन को पूरी तरीके से हटा दीजिए और आप कहिए जैसे गौरव के बात मान लें, तो हम ये मान लें कि हमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को मान लीजिए, और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बिल्कुल तरक्की पसंद है, वो तमाम जो अच्छी अच्छी बातें हैं उन्हीं को लेकर चलता है, और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उसको बदला जा सकता है, जो गुंजाइश अपने आप में रिलीजन में नहीं होती। लेकिन दूसरी बात भी आप ये भी कर सकते हैं कि भाई आप रिलीजन ही मानना ही चाहते हैं तो आप रिलीजन में से भी अच्छी अच्छी बातें ले आइए, कि भाई आप सरस्वती जी को ले आइए और बच्चों को पढ़ा दीजिए, दुर्गा जी को ले आइए और लड़कियों को एम्पावर कर दीजिए, और उनको बाज़ार के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में जाने दीजिए लक्ष्मी जी के साथ। तो आप रिलीजन के साथ भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन रिस्क ये होता है कि रिलीजन में कई बार लोगों को लगता है कि ऑर्थोडॉक्सी के क्रीप करने की गुंजाइश है। Therefore, Constitution is a very good way of modernization and bringing in greater women empowerment. There are many other things which we can talk about, but there is only one thing which I think is very important, that when we talk about empowerment, we have to understand power can be understood in many ways. Power over, power with, power within. Power over का मतलब है दूसरे के ऊपर शासन करने की ताकत, पावर विथ साथ ले चलने की ताकत, पावर विद इन अपने अंदर के जज्बे को सामने लाने की बात। जब हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं दैट women must have like men the power to control material resources and also ideology, कि जो भौतिक संसाधन हैं उनके ऊपर भी स्त्रियों का कंट्रोल हो और विचारधारा के ऊपर भी उनका कंट्रोल हो, उनके पास ये मौका हो कि वो दूसरे को अपनी बात समझा सकें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़ सकें। So when we talk about empowerment, it's very interesting that it would be very nice for all of you to look at the 1995 Beijing summit, where there were some indicators which were quantitative indicators for women empowerment and some qualitative indicators for women empowerment. In this very introductory idea, I would be not doing justice if I did not mention the last thing which I had promised, that is about feminism. अक्सर लोगों को लगता है कि फेमिनिज्म अपने आप में कोई बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और वो सिर्फ बाय द वुमेन, ऑफ द वुमेन, फॉर द वुमेन एक विचारधारा है, पर ये बात बिल्कुल सच नहीं है। फेमिनिस्ट अपने आप में बहुत तरीक़े की बातें कर रहे हैं। फेमिनिस्ट अपने आप में 3 सवाल लेकर चलते हैं। संसार में औरतों का दमन क्यों हुआ, इस बात को, दूसरी बात हम कैसी दुनिया चाहते हैं, और तीसरी बात वैसी दुनिया कैसे बनाएं। स्त्रियों का दमन कैसे हुआ, इसके अलग अलग उत्तर मिलते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि पेट्रियार्की की वजह से स्त्रियों का दमन हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से स्त्रियों का दमन हुआ, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी से बाद में आई, स्त्रियों का दमन पहले होता था। तो जब आप गर्डा लर्नर को पढ़ते हैं या जब आप मार्क्स एंड एंगल्स को पढ़ते हैं तो 2 अलग अलग जवाब मिलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि स्त्रियों का दमन इसलिए हुआ क्योंकि वो शारीरिक बनावट ही उनकी ऐसी है, नेचर ने उनको ऐसा बनाया। कुछ लोग ये कहते हैं कि कल्चरल प्रैक्टिसेस की वजह से हुआ, कुछ लोग कहते हैं कि ये इकोनॉमिक पावर की वजह से ऐसा हुआ, और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये प्राकृतिक मनुष्य की
पुरुष की हिंसक प्रवृत्ति की वजह से हुआ। अलग अलग लोग अलग अलग तरह से जवाब देते हैं। लिबरल फेमिनिस्ट, मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट, सोशलिस्ट फेमिनिस्ट, एग्जिस्टेंशियल फेमिनिस्ट, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिस्ट, ये अलग अलग विचारधारा के आधार पर अपनी डायग्नोसिस करते हैं कि स्त्रियों का दमन क्यों हुआ। हम कैसी दुनिया चाहते हैं? इसमें कुछ नारीवादी ये कहते हैं कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें औरत और मर्द में कोई फर्क ना हो। कुछ नारीवादी ये कहते हैं कि हम ऐसी दुनिया चाहते हैं जिसमें औरत और मर्द में फ़र्क हो लेकिन दोनों को बराबर तस्लीम किया जाए। दे आर डिफरेंट बट इक्वल। और कुछ और लोग नारीवादी ये कहते हैं कि आपने बहुत दोनों दुनिया को मर्दवादी दृष्टि से चला कर देखा, अब आप स्त्रियों की दृष्टि से दुनिया चला कर देखिए। और आप दर्शन विभाग में बैठे हैं तो यहाँ पर हम लोग उसको अक्सर केयर एथिक्स के रेफरेंस में देखते हैं कि जस्टिस, इम्पार्शियलिटी, इन सब का चर्चा हमने बहुत करी, कांट में भी करी, रॉल्स में भी करी, पर अब हम कैरल गिलिगन और लोगों के नज़रिए से दुनिया को देखकर देखें और कहें कि केयर, नर्चरिंग की क्या भूमिका है। तो वो ये कहते हैं कि आपने जिसको इन्फीरियर माना था, जिसको घटिया माना था, जो मोहब्बत का जज्बा है, केयर का जज्बा है, एक दूसरे का ख्याल रखने का जज्बा है, वो अपने आप में ज़्यादा अच्छा है। पुरुषवादी जो विचार है कि जिसको कंट्रोल कर लो, नोच लो, पृथ्वी के अंदर से सोना निकाल लो, कर्षण करके इसके अंदर ये कर लो, दूसरे को कंट्रोल कर लो, ये जो पुरुषवादी मानसिकता है ये बच्चों के लिए डेंजरस है, औरतों के लिए डेंजरस है और पुरुषों के लिए भी डेंजरस है। इसलिए क्यों ना हम एक तीसरी दृष्टि से दुनिया बनाएं जो कि केयर की एथिक्स है। ऐसी दुनिया बनाने की बात करते हैं। अब ऐसी दुनिया, तो पहला सवाल था वाई आर विमेन सब्जुकेटेड, दूसरा सवाल था व्हाट इज द काइंड ऑफ वर्ल्ड दैट। अब तीसरा सवाल ये कि ऐसी दुनिया बनाएं तो कैसे बनाएं। तो जो लिबरल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं कि सबको एजुकेट कर दीजिए, लड़के लड़कियों को बराबर से एजुकेट कर दीजिए, प्राइमरी एजुकेशन दे दीजिए, सेकेंडरी एजुकेशन दे दीजिए, हायर एजुकेशन दे दीजिए, मार्केट एक्सेस दे दीजिए और पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन दे दीजिए, और करने की ज़रूरत नहीं। जो रेडिकल फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं अरे आप तो बड़े भोले हैं, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, और ऐसा कोई आपको करने भी देगा कि नहीं करने देगा। आदमी तो होते ही बदनीयत हैं, वो इस सब को कंट्रोल कर लेंगे और वो इसको अपना वर्चस्व स्थापित ही कर लेंगे। पूरी इंडस्ट्री आप देखिए और उसके अंदर वो दो चीज़ों को कहते हैं, मदरहुड 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 सब कहते हैं, और पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री चलाते हैं। ये दोनों जो चीज़ें चल रही हैं इनको ज़रा ध्यान से देखिए। आपने कहा औरत तो माँ होती है, वो तो देवी होती है, उसको आपने कैद खाने में डाल दिया, और आपने ये कहा कि औरत माँ होने के अलावा कुछ नहीं हो सकती। जैसे ही औरत माँ होने के अलावा कुछ सोचती है तो वो डायन बन जाती है। तो आपने उनको एक पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया, आप वहीं खड़े रहिए, मम्मी मम्मी मैया मैया, तो वो वहीं पे खड़ी रह जाएगी। सो दैट्स वन प्रॉब्लम, एंड सम पीपल आर सेइंग दैट नो, दे हैव टू मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द इंस्टीट्यूशन ऑफ मदरहुड एंड द एक्सपीरियंस ऑफ मदरहुड। और वो कहते हैं माँ बनने का अनुभव अपने आप में बहुत ही सकारात्मक है, पर माँ बनने की संस्था जो औरत को माँ के दड़बे में कैद कर देती है वो गलत है, ऐसा रेडिकल फेमिनिस्ट कहते हैं। और वो कहते हैं कि पूरी पोर्नोग्राफी की इंडस्ट्री, जिसमें आप दिन भर व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे इतनी पोर्नोग्राफी देखते रहते हैं, वो अपने आप में औरतों के लिए बड़ी घातक है, क्योंकि हर आदमी, छोटा छोटा लड़का भी अब औरत को उसी तरीके से देखता है, जिसमें उसको ये समझाया जाता है दैट विमेन आर ओनली बॉडीज़। और आप ये हम एजुकेशन में भी देखते हैं कि लड़कियों के बारे में जो आप कविता पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, उसकी आँखें मछली जैसी थी, उसके बाल ऐसे थे, उसकी खाल ऐसी थी। तो औरतें जो हैं वो सिर्फ बाल खाल ही होती हैं, वो कोई उनके अंदर कोई ज्ञान विज्ञान रचनात्मकता की कोई क्षमता नहीं होती। आदमियों के बारे में तो आपने कोई कविता नहीं पढ़ी। कल ही हमारे यहाँ एक टीचर ने कहा कि देखिए कितना सुंदर लड़का आ गया। अब इतना सुंदर लड़का आ गया तो हम उसके रूप रावटी की अगर चर्चा करें तो क्या होगा। कविता तो आप सिर्फ पढ़ाते कि नहीं वो उस शोक कमसिन की ऐसी कमर थी बतेरे, और वो कालिदास कह रहे हैं अनाघ्रातम पुष्पम, ये कैसे फूल की तरह जिसको कभी सूंघा नहीं गया। हम कहेंगे ये लड़का इतना सुंदर है कैसे फूल की तरह जिसको सूंघा नहीं गया। ये उतना ही डेरोगेटरी और उतना ही ऑफेंसिव है जितना कि लड़कियों के बारे में। पर हमने लड़कों के बारे में ऐसी कविता पढ़ी है आपने, अनाघ्रातम पुष्पम
So that we are laughing at it, but the fact is it's a serious business. What we are saying here is that when we are talking about educational transformation, when we are talking about educational sensitivity, and here what I was talking about is that what is the kind of the world that we want to make, and how do we make that? Liberal feminists say education, politics and market, equal availability will do the trick. Radical feminists are saying we need to take more serious look at the male-centric thinking, which is the body-centric thinking, which is the control-centric thinking. The arms industry and the pornographic industry work together, and they rule the world. And that's what in the same-sex discussion also, this is what I was wanting to say. Same-sex industry के अंतर्गत भी आप पूरी देखिए, वो पूरी गे pornography और पूरा obsession कि लड़के अपने आप को खूबसूरत बनाएं और अपने muscle बनाएं. So obsession with body is extremely problematic as much in the heterosexual relationship as it is in the same-sex stories. So we have to look at it very seriously. ऐसी दुनिया बनाने के लिए मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट का ये कहना था कि अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी को हटा देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जो सोशलिस्ट हैं या अन्य लोग हैं वो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी को हटाने से फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूंजीवादी आदमी भी औरतों का दमन कर रहा है और मजदूर आदमी भी दमन कर रहा है, और जो मजदूर औरत है वो मजदूर आदमी के द्वारा भी शोषण उसका हो रहा है और मालिक के द्वारा भी शोषण हो रहा है. इसी तरीके से जो ब्लैक वुमेन मूवमेंट है वो कह रहा है कि हमें ब्लैक आदमी भी शोषित कर रहा है और सफ़ेद आदमी और सफ़ेद औरत भी शोषित कर रहे हैं. सो केवल पैसे से काम नहीं चलेगा. सो वी हैव टू टेक अनदर व्यू एंड देन तो हम क्या करें, शिक्षा में परिवर्तन करें, इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन करें, सोशल ऑर्गेनाइजेशन में परिवर्तन करें. So there are different ways about which they are saying that we need to make a change. So feminists are not men hating women, but they are life affirming people who are saying that both boys and girls must affirm life. Zindagi ko haan kahiye. Say yes to life. Say yes to, so be assertive, not aggressive. Be life affirming. आप अगर बच्चों को गोदी में उठाते हैं तो आपकी मर्दानगी कम नहीं हो जाती, आप ज़िंदगी को हाँ कह रहे हैं. आप गाना गाते हैं, आप रोते हैं तो बहुत अच्छा. I must share this. 3 days back I was addressing teachers of high school and intermediate in a premier institution. And there I was saying that, you know, what do you do with students? How do you help children to become more communicative? How do you break the ice between? I was giving them a simple exercise. मैंने कहा आप अपना हाथ देखिए और उसके बारे में 60 seconds तक बोलिए. And I cannot tell you कितनी बातें कहीं लोगों ने, कोई जल्दी कह रहे थे कि नहीं हाथों में ये लिखा है etc etc. But I found very interesting that one man was saying मैंने अपने हाथों को देखा and I thought of my mother and immediately he started crying. And a very senior 50-year-old teacher of science. So what do things represent? It's all right to cry. It's all right to remember your mothers. It's all right to for women to ask for public recognition. So what I'm only trying to say right now in this small orientation organized by Dr. Shukla and Professor Roli Mishra in the Jensen, as a part of the Jensen program, is that when we talk about gender, it would be very nice for us to look at all our everyday practices, all our institutions, and see whether both boys and girls are finding expression in it, both boys and girls are feeling free to express themselves, and both of them are seeing human flourishing in that. I hope that the young people will have many more opportunities to interact with each other, and as the Jensen cell has been organizing in the past year, there will be many public speak outs where they can talk about their personal issues and get some teachers and other people to talk to them, and we look towards a less cruel and a more gender just society. Thank you very much.